Welcomes everyone, all the students of BBA third semester, and this is Brijesh Singh, Assistant Professor, Department of Business Administration. And now I'm going to discuss with you Introduction of Management Accounting Part 2. In that particular session, I discuss with you the meaning and definition, nature or characteristics of management accounting. So in my first lecture, I discuss with you the different term of like management accounting and origination of management accounting and the main authors and pioneer authors of management accounting and other things I discuss with you. But in that particular session, in the continuation of the introduction of to the management accounting, I discuss with you meaning and definition, nature or characteristics. So basically meaning and definition की अगर हम बात करें तो basically the management accounting composed of two words, management and accounting, as you know very well. The what is management? So basically management of the function of management is basically, you know very well, it is a planning, organizing, directing and controlling, and then organizing the things and other things. And so management के जो functions हैं, then accounting, the function of accounting अगर हम बात करें तो recording transactions, summarizing, classifying and summarizing the interpretation of data. Then we uh, merge these two terms as management and accounting and comes together, and new branch it is known as management accounting. So then when comes into the force to management, so planning and directing of information. So basically this system was quite useful in providing meaningful information and provide necessary information to the managerial planning, direction and control. तो जब हम दोनों टर्म को यूज करते हैं तो एक तरफ मैनेजमेंट है, दूसरी तरफ अकाउंटिंग है. तो मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग करना, जबकि अकाउंटिंग का काम है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना तो और उनको क्लासिफाइंग, समराइज करके डाटा को इंटरप्रेट करना. तो इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशंस को यूज करके उनको प्लानिंग, डायरेक्टिंग और फॉर द मेकिंग पॉलिसीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. It is the study of second thing है कि it is the study of managerial aspect of accounting. तो basically managerial aspect क्या है? अगर हम बात करें managerial aspects की तो means the aspects अगर हम बात करते हैं तो there are lots of various aspects of accounting which use in managerial terms. So like in planning, organizing, directing and other terms of management accounting. So a system of accounting designed and basically it is the study of managerial aspect of accounting, as you know very well. And third thing is the system of accounting designed to cater to the informational requirement of management. तो एक ऐसा सिस्टम जो कि अकाउंट ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है ताकि जिसमें इंफॉर्मेशनल जो होती हैं पार्टिकुलरली रिक्वायर्ड होती हैं बाय द मैनेजमेंट, तो उस तरह के सिस्टम्स को हम इसमें यहाँ एक्वायर करते हैं, रिक्वायरमेंट होती है उनको हम लेते हैं. इसके अलावा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इट डील्स विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन. हम ये भी देखते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूज करती है, डील प्रेजेंट करती है इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, एंड द मैनेजमेंट हैड टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन एंड टेकिंग मेकिंग पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स. एंड इट इज़ अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग बेसिकली. तो यहाँ पर जो हम टर्म की बात कर रहे हैं वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है, यानी कि यहाँ अकाउंटिंग से ज़्यादा मैनेजमेंट जो हमारा होता है किसी भी संस्था का, किसी भी बिजनेस का, वो इन टर्म्स को यूज करता है, इंफॉर्मेशन को यूज करता है, इसलिए इसको मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग भी कहा जाता है. Now the definitions, these are the some definition of management accounting. The management accounting is concerned with the accounting information that is useful to the management, given by the Robert and Anthony, as you see here in the picture. So the management accounting एक ऐसा concern है, एक ऐसा term है जो particularly जो है accounting information के साथ related है और जो कि management के लिए काफी useful हो सकता है. Second thing है definition जो है वो है management accounting is the term used to describe the management methods, accounting methods, sorry,
and systems and techniques which, coupled with special knowledge and ability, assist management in its task of maximizing profit or minimizing the losses given by the JBT। तो ये इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा टर्म है जो हम यूज करते हैं ताकि इसमें अकाउंटिंग के मेथड्स को, सिस्टम्स को, टेक्निक्स को यूज करते हैं जो एक कपल्ड इंफॉर्मेशन नॉलेज के रूप में, और बेसिकली वही व्यक्ति इसको यूज कर सकता है जो इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज और एबिलिटी रखता हो, जिससे कि जो मैनेजमेंट को असिस्ट भी कर सकता है, जिसके कारण। और टास्क, क्या टास्क होता है मैनेजमेंट का? बेसिकली मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग द लॉसेस। थर्ड डेफिनेशन है वो दी गई है आपकी टीजी जो रोज के द्वारा, is the adaptation and analysis of accounting and information and its diagnosis and explanation in such a way as to assist the management। तो टीजी जॉर्ज ने भी यही एक तरीके से अपने शब्दों को घुमा के थोड़ा सा इसमें कहा गया। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा अडेप्टेशन एंड एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टर्म है जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या को अडप्ट करता है और उन अडेप्टेशन के बाद फिर उनको डायग्नोस करता है। जैसे कि डॉक्टर जो है पेशेंट को देखकर उसकी डायग्नोसिस करता है कि उसको कहाँ क्या प्रॉब्लम, उससे पूछता है, क्वेश्चन करता है, उसी टाइप से जो मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेता है और उन इंफॉर्मेशन को एनालिसिस और डायग्नोसिस करता है। देन एक्सप्लेन इन सच ए वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट, और उस तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है जिससे कि मैनेजमेंट उसका बेनिफिट ले सके। Then fourth definition जो है वो है any form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently can be regarded as management accounting. This is given by the Institute of Chartered Accountants, England. Any form of accounting, कोई भी ऐसी फॉर्म जो अकाउंटिंग की फॉर्म है जो कि एक बिजनेस जो है कंडक्ट करता है more efficiently and can be regarded as management accounting. And fifth one is presentation of accounting information in such a way as to assist the management in the creation of policy and day-to-day operation of undertakings, and given by American Council on Productivity. Then another definition is American Accounting Association के द्वारा दी गई है, is the application of appropriate technique and concept in processing historical and projected economic data of an entity and assist the management in establishing plans for reasonable economic objectives in the making of rational decision with a view of towards achieving these objectives। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें कही गई हैं जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दी गई है डेफिनेशन कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा एप्लीकेशन है जो अप्रोप्रिएट टेक्निक, एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक्स है जिसमें कि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक डेटा हो, या कोई एंटिटी जो मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकती हो, जिससे कि मैनेजमेंट जो है प्लान्स को स्टेब्लिश कर सके ताकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हम जो है अचीव कर सकें, और रेशनल डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर आ जाती है। तो फॉर अचीविंग द टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द particular organization, then we go for the management accounting। Then on the basis of these study of definitions and meanings and various definition concept of management accounting may be explained। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मैनेजमेंट का टर्म है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पहली चीज है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो आइडेंटिफिकेशन करती है। आइडेंटिफिकेशन मींस जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो डेटाज हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। देन मेजरमेंट, फिर उनका माप जो है मेजर किया जाता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन है, फिर उन इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रेजेंट करना होता है। देन एनालिसिस, उन इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर किस तरह की इन्फॉर्मेशन यूज करनी है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन का यूज करके फिर इंटरप्रिटेशन किया जाता है। फिर उन इंटरप्रिटेशन से हम रिजल्ट्स जो है कम्युनिकेट करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। और इस तरीके से ये जो है प्रोसेस जो है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट असिस्ट द मैनेजमेंट। फिर ये जो सब चीजें हैं वो प्रोसेस करने के बाद वो मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं कि किस लिए असिस्ट करते हैं, ताकि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो है वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ फुलफिलिंग द मिशन ऑब्जेक्टिव्स किया जा सके। जिस
So मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली एज यू नो वेरी वेल, यहाँ पर हमने फिर ये डिस्कस किया है. Then another nature and characteristics of management accounting. So basically management accounting, the first nature and characteristics, it is both, it is a science or and art. So in the management accounting, data are collected systematically and they are analyzed with the help of various formulas and techniques. तो हम इसलिए इसको साइंस भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे जो टर्म हैं वो हम टेक्निक्स हैं जो यूज़ करते हैं, जिसमें फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं, इसलिए इसको साइंस के रूप में भी देखा जा सकता है. अगर हम बात ऑन द अदर हैंड सब्जेक्टिव जजमेंट जो है मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं, तो वेरियस नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो टेकन into the account, and while taking decision on the basis it is an art. So that's why it is an art. Then second thing is accounting services. तो अकाउंटिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो है सर्विसेज की बात हो रही है, तो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज टूवर्ड्स मैनेजमेंट. अंडर दिस सर्विसेज नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसलिए भी हम इसको अकाउंटिंग सर्विसेज के रूप में देखते हैं. थर्ड थिंग है इंटीग्रेटेड सिस्टम है, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम and which techniques related to various subjects are used. अलग अलग जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग टेक्निक है, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स है, तो इसलिए इसको इंटीग्रेटेड सिस्टम भी कहा जा रहा है. अलग अलग टेक्निक्स हम इसमें यूज करते हैं फॉर कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग. तो these techniques include cost accounting, financial accounting, statistics, economics, business, and other so industrial psychologies and other things. And fourth one is more concerned with फ्यूचर की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल ना होकर फ्यूचर से ज़्यादा कंसर्न करता है एंड इज मोर कंसर्न विद फ्यूचर. नो डाउट्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर मेड एंड विद द बेसिकली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा होते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो हम करते हैं और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वो पॉलिसीज मेकिंग करने के लिए फॉर द फ्यूचर, फॉरकास्टिंग एंड, तो इस तरीके से प्लानिंग एंड बजटिंग एंड एक्सेट्रा आर दीज थिंग्स डन इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो दैट्स व्हाई इट इज द मोर कंसर्न विद फ्यूचर. फिफ्थ वन इज सेलेक्टिव इन नेचर. अगर हम बात करें तो एज यू सी है, तो सेलेक्टिव नेचर की बात हो रही है, मींस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सेलेक्टिव इन नेचर एंड इट इज सेलेक्ट्स ओनली दोज प्लान्स और अल्टरनेटिव्स व्हिच सीम्स टू बी मोर अट्रैक्टिव. तो मोर अट्रैक्टिव जो प्लान्स होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा इसमें यूज करते हैं. इसके अलावा लेस अट्रैक्टिव प्लान्स को हम इसमें कम यूज करते हैं, तो इस कारण से इसको सेलेक्टिव इन नेचर भी कहा जाता है. सिमिलरली ओनली दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स आर प्रेजेंटेड इन द पर्टिकुलर figure are presented before the management, and useful managerial understanding and decision also there. Sixth one is more emphasize on the nature of elements of cost. तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि मोर एम्फेसाइज ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात हो रही है, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है बेसिकली लेज मोर एम्फेसाइज ऑन रिकॉग्निशन एंड स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वेरियस elements of cost, and in that context total cost is divided into fixed, variable, and the semi-variable components also there, though it can be mentioned here. And the number of techniques of management accounting such as standard costing, marginal costing, and cost volumes relationship यानी कि CVP analysis वगैरह, so all these things techniques are used, so that's why the elements of cost are concerned. And seventh one is the cause and effect analysis. So basically management accounting study the cause and effect analysis, and management accounting lays emphasis on the analysis of cause and effect and different variables. Like financial accounting is limited to the presentation of profit and loss account and finding the results from the profit and loss as a profit and loss. And then management accounting basically examines the cause of such results. क्यों प्रॉफिट आया तो कैसे हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या रीजंस रहे, लॉसेस हुए तो क्या रीजंस रहे, तो दैट्स थिंग्स आर कंसर्न. एंड इफ देयर इज लॉस, तो why loss is comes, and reasons for the losses are proved by the management. And if there is a profit, the factory directed influence in the profitability also
studied. And similarly, the management accounting examines the financial effects on various managerial decisions. Then eighth one is rules not precise and universal. लेकिन अगर हम इसकी और बात करें तो rules not precise and universal की बात कही गई है. It means management accounting, no set of rules and standards are followed, and through the tools of management accounting are the same, use of different from the concern to concern. हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके की संस्था जो है अलग अलग तरह के रूल्स को अपना बना लेती है और अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन करती है. तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, कोई भी संस्था अपने हिसाब से कर सकती है. तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पर देखी जाती हैं. सप्लाइज इंफॉर्मेशन नॉट डिसीजन. बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हम कहते हैं कि इंफॉर्मेटिव है, डिसीजन मेकर्स है. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये है कि इट्स प्रोवाइड्स रिक्विजिट इंफॉर्मेशन नॉट द डिसीजन. पर्टिकुलरली फाइनली डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट का ही होता है. अकाउंटिंग केवल आपको इंफॉर्मेशन देती है, आपका एनालिसिस कर सकती है, इंटरप्रिटेशन कर सकती है, लेकिन जो बेसिक जो टर्म है वो the role of management accounting can be compared to the map, and every wise traveler carries map with him and other does not ask for map and should go anywhere and etc. तो ये चीजें हम देखते हैं कि जैसे कोई ट्रैवलर है, मैप लेके चल रहा है, लेकिन उसको पता है कि मैप रास्ता है, उसी के हिसाब से जाएगा. तो वो मैप सिर्फ वे आपको दिखा सकता है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है कि आपको राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है. एंड देन 10th पॉइंट है आपका अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. So basically, management accounting, the accounting information is used in such a way so that organizational objectives and targets may be achieved and efficiently on the business may be improved. So these the 10 points that I discuss with you to all the terms, and these terms are known as the nature and characteristics of management accounting. So on the whole, अगर हम बात करें तो management accounting is a very important and sensitive system from the view of managerial needs.